یہ جو ہے وہ دارالامارہ ہے، عبیداللہ ابن زیاد یہاں پہ تھا، اور آپ نے مختار نامے میں جناب مختار کی حکومت بھی دیکھی ہے، اور یہیں پہ وہ جنگ ہوئی تھی جناب مختار کی، کہ وہ جو جنگ جو ہے وہ شمر اور زبیریوں سے جو جنگ کی تھی وہ جناب مختار میں یہیں کی تھی، جو قصاص لیا جناب مختار نے وہ یہیں سے بیٹھ کے لیا۔ پھر جناب مختار کی جو شہادت ہوئی ہے وہ یہیں مسجد کوفہ کے اس محراب میں ہوئی ہے جہاں پہ مولا کائنات کی شہادت ہوئی، اور یہیں وہ جنگ ہوئی۔ کنواں ہے، اور کمال بات یہ ہے کہ اس میں کبھی بھی پانی نہیں رہا۔ اچھا، کنویں میں کبھی بھی پانی نہیں تھا سید۔ واہ، یہاں یہ تھا کہ مولا گھنٹوں اپنا چہرہ اس کنویں میں ڈال کے گفتگو کرتے تھے۔ ایک کوفے میں مسلمان بہت تھے لیکن مسلم صرف ایک تھا۔ جو انہوں نے تہذیب سکھائی امام حسین کو سلام پیش کرنے کی، وہ یہ کہ آج بھی جب آپ انگلی اٹھا کے شہادت کی انگلی اٹھا کے زیارت ایسے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، تو یہ جناب مسلم علیہ السلام کی سنت ہے۔ السلام علیکم، یہ علی مدد، میں ہوں ذیقہ عباس، اور ایک بار پھر حاضر ہوں مسجد کوفہ میں۔ یہ آغا بھائی کے ساتھ علیحدہ سے زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، تو مولا کائنات کے گھر جا رہے ہیں۔ آج گروپ پورا جو ہے وہ ہمارا مسجد سیلہ میں ہے، اور یہ آغا بھائی انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی میں زیارت کرنی تھی۔ جی سید، میری زیارات رہ گئی تھی اس دن رات، کیونکہ رش بہت تھا، تو میں ذرا نا ڈرپوک آدمی ہوں، رش سے گھبراتا ہوں۔ پھر میں نے مولا سے کہا تھا میں اگلے دن آؤں گا، شکر ہے مولا کا میں آج آ گیا ہوں، اور یہ زیارت کریں گے مولا کے گھر کی اور مسجد کے اندر۔ اور اس دن واقعتاً آغا بھائی بہت رش تھا مسجد کوفہ میں، ایسا رش جو ہے وہ پچھلے سال نہیں دیکھا تھا ہم لوگوں نے جتنا رش اس سال تھا مسجد کوفہ میں۔ وہ سید آج وہ اس کی کیلکولیشن آئی ہے ساری کہ اس رات 63,91,300 بندہ تھا، جو انہوں نے کیلکولیشن دی ہے عراق والوں نے۔ 63 لاکھ بندہ شب ضربت سے لے کے اب تک آیا ہوا ہے نجف اشرف۔ نجف اشرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چلتے ہیں مولا علی کے گھر کی طرف، اور آپ سب کی طرف سے نائب زیارت، اور مولا آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، اور آغا صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں کہ ان کے وسیلے سے دوبارہ زیارت ہو گئی۔ نہیں سرکار، یہ آپ سے سادات کی دعائیں ہیں، یہ مسعود بھائی کو سارا کریڈٹ ہے، آپ سادات کو جو ہمارا وسیلہ بنتے ہیں یہاں آنے پہ۔ خاص طور پہ میں مسعود بھائی کے لیے ہر جگہ پہ دعا گو، اللہ پاک ان کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، کیونکہ وہ واحد سالار میں نے دیکھا ابھی تک جس کو نہ پیسوں کا لالچ ہے، نہ اس کو صرف یہ ہوتا ہے کہ زیارات ہو جائیں، اور میں ان کے بیٹے کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اسے بہت بڑے عہدے پہ فائز کرے، لائف کرے۔ اور کیا کہا آپ نے، کمشنر بنا؟ ہاں، کراچی کا کمشنر بنا ہے۔ ہم نے بھی جانا ہو تو ہمیں ٹائم لینا پڑے، الہیہ۔ اس کو، اور وہ بچہ بھی بہت اچھا ہے، اور مسعود بھائی خود بہت اچھے ہیں۔ ہمارا اس طرح دوستوں النجات کے روئے وہاں مسعود رضوی، ایک بار ان کے ساتھ آ کے دیکھیں، یہ آپ کا اس طرح خیال رکھتے ہیں جس طرح کوئی ماں اپنے بچوں کو سنبھال کے رکھتی ہے۔ کیا بات، مطلب اگر رات کو کسی نے ڈگیا 12 بجے بھی کہا میں نے کھانا نہیں کھایا، وہ اس کے لیے کھانا لینے جاتے ہیں، اسپیشلی جو ہے وہ جا کے کوئی پیزا، کیا بات، پوری پیزا شوارما یا کوئی ایسی چیز بیگم بھائی کے کباب اور کھلائے ٹکے کھلائے، تو ہم ان کے بڑے مشکور ہیں مسعود بھائی کے۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کو صحت، زندگی، تندرستی والی زندگی عطا کرے۔ گھر پر آ گئے ہیں مولا کے گھر میں، بیت شریف، یہ مولا کے گھر کا صحن ہے۔ اچھا، مولا کے گھر کے اندر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک جگہ دکھانا چاہتا ہوں، عبرت کا نشان ہے۔ یہ عبیداللہ ابن زیاد کا جو ہے وہ یہ قلعہ تھا، یہ جس کو بیت کوفہ کہتے ہیں، دارالامارہ کہتے ہیں۔ وہ دیکھیں اس کی فصیلیں، اس کی دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ جو ہے وہ دارالامارہ ہے، عبیداللہ ابن زیاد یہاں پہ تھا، اور آپ نے مختار نامے میں جناب مختار کی حکومت بھی دیکھی ہے، اور یہیں پہ وہ جنگ ہوئی تھی جناب مختار کی، کہ وہ جو جنگ جو ہے وہ شمر اور زبیریوں سے جو جنگ کی تھی وہ جناب مختار میں یہیں کی تھی۔ یہ سامنے اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو یہ سامنے یہ دیواریں یہاں پہ دیکھیے، یہ فصیلیں ہیں، یہ وہ فصیلیں ہیں
जो दारुल-अमारा की जनाब मुख्तार ने यहाँ पर जंग की, और यहीं पर जो है वो जनाब मुख्तार की जो है वो कातलाने हुसैन से जो क़िसास लिया जनाब मुख्तार ने, वो यहीं से बैठ के लिया फिर, और फिर यहीं पर ठोकर मारी। इस मुख्तार की जो शहादत हुई है वो यहीं मस्जिद कूफा के उस महराब में हुई है जहाँ पे मौला कायनात की शहादत हुई, और मकाम इबरत है। और यहाँ पर जो है वो तबर्रक किया था। मैं तो एक धूप फेंकूँगा यहाँ पे। ये खाना इस्मत है। अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल-मोमिनीन। ये मौला के घर में हम जा रहे हैं। ये सहन है, ये दारुल-अमारा है, ये मस्जिद कूफा है। जो मीनार आपको नज़र आ रही है, गुंबद जो है जनाब मुस्लिम इब्न अकील का रोज़ा है। ये मस्जिद कूफा के अंदर ही उनका हरम है। ये बस बैत अक़दस, ये जो है वो जनाब हसनैन के कमरे, और ये जो उनका जो आप ये समझिए कि पढ़ने की जगह या स्टडी इबादत गाह, ये मौला के कमरे। और ये सामने जो है वो मकाम है जहाँ पर मौला कायनात को जो है वो कफन पहनाया गया। कुआं है, कुएं की तरफ चल रहे हैं आगा भाई के पीछे पीछे। वो कुआं है, और इसका एक बड़ा कमाल मौजज़ा मैं आपको बताऊंगा। ये कुआं है मौला के घर का। मौला के घर का कुआं है, और कमाल बात यह है कि इसमें कभी भी पानी नहीं रहा। अच्छा, कुएं में कभी भी पानी नहीं था सैयद। वाह। यहाँ ये था कि मौला घंटों अपना चेहरा इस कुएं में डाल के गुफ्तगू करते थे। तो एक दिन जनाब फ़िज़ा ने पूछा, मौला आप क्या गुफ्तगू करते हैं इतनी देर? कहा, फ़िज़ा जितना मेरे पास इल्म था किसी ने नहीं पूछा, लिहाजा मैं इसको सुनाता हूँ अपना इल्म, हाय हाय, ताकि कोई तो जो मेरा इल्म समझ ले, मेरी बात समझ ले। जितना मुझे अल्लाह ने अता किया था किसी ने नहीं पूछा। हाय हाय। और इस कुएं में दोस्तों कभी भी पानी नहीं रहा, मगर बादशाह को ये जगह बहुत पसंद थी। वाह वाह। घंटों यहाँ बादशाह बातें हाय करते हाय। थे। अब जनाब मस्जिद कूफा की जानिब हम आ गए हैं। ये सामने बाब सोबान है, यानी कि अजदहे वाला दरवाज़ा। इसका मेरा पूरा व्लॉग जो है वो पड़ा हुआ है, गुज़िश्ता व्लॉग जो है कूफे के हवाले से। उसमें देखिए पूरी डिटेल मैंने बताई है कि बाब सोबान, इसका नाम बाब सोबान क्यों है। और ये सामने जो है वो मस्जिद कूफा की जो है वो दाखिला है, बस उस तरफ हम जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर चलते हैं तो फिर आपको जो है और चीज़ें जो मस्जिद के हवाले से दिखाते हैं। मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए हैं। सामने मस्जिद है। ये मस्जिद कूफा में जनाब मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। मौला सफ़ीर हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन ने अपना सफ़ीर बना के इन्हें कूफे भेजा था, और फिर कूफियों ने जो है वो जो यहाँ के रहने वाले थे उन्होंने दगा किया, और एक एक करके जो है वो जनाब मुस्लिम का साथ छोड़ते गए। क़िबला मौलाना अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब का जुमला भी क्या खूब सुनाया कि कूफे में मुसलमान बहुत थे लेकिन मुस्लिम सिर्फ़ एक था। भाई के बेटे जनाब अकील के बेटे जनाब मुस्लिम इब्न अकील के रोज़े पर आ गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अस्सलामु अला सफ़ीर हुसैन मुस्लिम इब्न अकील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बाबुल हवाइज हैं मेरे मौला। बहुत मज़लूमाना शहादत हुई इनकी कूफे में। वो ये कि आज भी जब आप उंगली उठा के शहादत की उंगली उठा के ज़ियारत ऐसे पढ़ते हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, तो ये जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उन्होंने उंगली उठा के शहादत की उंगली से इशारा करके इमाम हुसैन को सलाम किया था, आज भी राइज है। ये जनाब मुख्तार सकफ़ी का रोज़ा है, उनकी क़ब्र है। जनाब मुख्तार आप पर सलाम है कि आपने जो है वो कातलान हुसैन को चुन चुन कर कत्ल किया। कूफा में ही बिल्कुल जनाब मुस्लिम, ये जनाब मुस्लिम का रोज़ा है, यहाँ पर जनाब मुख्तार का, और बिल्कुल उनके सामने मस्जिद कूफा के आते में ये जनाब हानी इब्न उर्वा, ये भी नासरान इमाम हुसैन सहाबी रसूल सहाबी मौला कायनात में से हैं। और इन्होंने जो है वो कूफे में असल में जो है कूफे में जो कूफे वाले थे ना, वो ये थे जनाब हानी इब्न उर्वा, जिन्होंने इमाम हुसैन का साथ दिया और उनके लिए लोगों को आमादा किया। और जनाब मुस्लिम इब्न अकील जब कूफे तशरीफ़ लाए
तो जनाब हानी इब्न उर्वा के ही मेहमान रहे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हीले और जो है बहाने से जनाब हानी को गिरफ़्तार किया और फिर जो है वो उनको शहीद किया कि दारुल अमारा की छत से जो है फेंका गया। ये जनाब हानी इब्न उर्वा ये मौला के सहाबी हैं भाई, क्या बात है इनकी। जनाब हानी इब्न उर्वा के रोज़े से चलते चलते यहाँ से इस रास्ते से जनाब ये मौला कायनात की वो मस्जिद, मौला कायनात की वो महराब जहाँ पे मौला को ज़रबत लगी, वहाँ तक हम आ गए हैं। वो सामने बाब सोबान है, ये इधर बाब सोबान है और वहाँ से हम दाखिल हुए थे, तो आप रास्तों का अंदाज़ा लगा लीजिए। ये जो है वो महराब है मौला कायनात की, जहाँ पर 19 रमज़ान की सुबह इब्न मुलजिम मुरादी ने लईन मलहून ने मौला के सर पर ज़रबत लगाई और ऐसी ज़रबत लगाई कि जब मौला का सब जानते थे ना कि मौला को जंग में तो ज़ेर कर ही नहीं सकते, अली को नमाज की हालत में ही जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। मौला को जो है वो इस मकाम पर ज़रबत लगाई इब्न मुलजिम मलऊन ने और मौला ने फिर सजदे से जब मौला को ज़रबत लगी तो मौला ने ऐलान किया फुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। अली तौहीद की अलामत है। अली इब्न अबी तालिब जो है वो परवरदिगार की पहचान कराने आए, मालिक मौला परवरदिगार की पहचान कराने आए हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मौला ने शहादत पाई इसलिए कहा कि मौला ने कहा इसलिए सीखा अपनी ज़बान से जारी किया फुज़्तु व रब्बिल काबा। नहीं 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 भाई, जिनकी मोहब्बत में मर जाना, जिनकी मोहब्बत में अगर कोई मोमिन अपने बिस्तर पर मर जाए तो वो शहीद कहलाता है। तो ख़ुद अमीरुल मोमिनीन जो है वो जब दुनिया से जाए तो वो कैसे आप उनको कहें कि वो मौला इस वजह से कहा होगा कि मैं शहीद हो गया। कि भाई जिसकी मोहब्बत की वजह से बिस्तर पर मर जाए तो वो शहीद है, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो कामयाबी अपनी इस शहादत की रूह से गर्दान रहे हों। लेकिन नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि तौहीद पहचानवाने आए थे, अल्लाह को पहचानवाने आए थे। मस्जिद कूफा की ज़ियारत हो गई और अब जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जनाब खदीजा बिनते अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बीबी की जो ज़ाहिरी तौर पर जो उम्र मुबारक थी वो 4 बरस की थी और ये मौला अब्बास की बहन है। जब मौला कायनात की शहादत हुई है तो बीबी ने इतना गिरिया किया, इतना मौला अली के फ़िराक़ में इतना तड़पी, बीबी को इतना गम हुआ कि बीबी जो है वो दुनिया से पर्दा फरमा गई। ये मौला अब्बास की बहन थी, जनाब उम्मुल बनीन की बेटी थी और ऐसे ही जो है वो मोहब्बत थी जैसे जनाब इमाम हुसैन और बीबी सकीना के दरमियान मोहब्बत थी। ये मौला अली की पहली ये ऐसी गमखार हैं कि जो उनके गम में तड़प कर उनको याद करते करते जो है वो दुनिया से रुखसत हो गए। ये मेरी शहज़ादी की तुरबत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अच्छा जी, बस वो टैक्सी में बैठ गए और अब हम जा रहे हैं ये आगा साहब के साथ, बस अब नजफ़ जा रहे हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इंशाल्लाह मज़ीद भी कुछ वीडियोस और मालूमाती वीडियोस के साथ हाज़िर होगा। वस्सलाम या अली मदद।